Bismillahirrahmanirrahim. Class 12th, subject economics. Our topic is components of aggregate demand. Components of aggregate demand. As I have already discussed about components of aggregate demand, there are 4 components. Number 1, C, that is private consumption expenditure. Number 2, I, which is private investment expenditure. Number 3, G, government expenditure. Number 4, X minus M, net exports. Now we will discuss them one by one. Number first, C, that is private consumption expenditure. What is private consumption expenditure? Private consumption expenditure is determined by the level of personal disposable income in the economy. Generally, higher the disposable income, higher the private consumption expenditure. Now, C means private consumption expenditure. Private consumption expenditure is by and large determined by the level of personal disposable income in the economy. Generally, higher the level of personal disposable income, higher the private consumption expenditure. Private consumption expenditure, it is also called household expenditure. It comprises demand for all goods and services. By the household of a country during an accounting year. It is also called household consumption expenditure. It comprises demand for all goods and services by the households of a country during an accounting year. अब ये प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है? प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है, इसको हम कहते हैं कि ये बाय एंड लार्ज डिटरमाइन किया जाता है बाय द लेवल ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. यानी कि जितनी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होगी उतनी ही लेवल ऑफ प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगी. अगर हमारे पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की लेवल ज़्यादा है तो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर तो भी ज़्यादा होगा. अगर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम है तो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा. इसको हम कहते हैं
हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसमें इस कंप्राइज होता है डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड्स, यानी कि डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में एक हाउस होल्ड की तमाम, या इट कंप्राइज, या हम कहते हैं इट कंप्राइजेज डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड्स ऑफ ए कंट्री, यानी जो भी हाउस होल्ड्स ऑफ द कंट्री हैं, जो इनकी डिमांड है, गुड्स एंड सर्विसेज की, इस चीज़ को हम कहते हैं ये है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फिर जब वो खर्च करेंगे, जितनी उनके पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होगी उतना वो खर्च करेंगे, उस चीज़ को कहते हैं हम प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। नंबर सेकंड इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर is determined by the market rate of interest, other things remaining constant. Higher rate of interest causes lower investment expenditure. I means private investment expenditure. Private investment expenditure is determined primarily by the market rate of interest. It is determined by the market rate of interest, other things remaining constant. It is determined by the rate of interest. Higher rate of interest causes lower investment expenditure. It refers to expenditure by private investors on the purchase of goods which add to their stock of capital. Investment implies increase in the stock of capital goods or capital formation, as rate of interest is the principal determinant of the private investment. Higher rate of interest generally implies lower investment expenditure. यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये होता है जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स, एक्सपेंडिचर बाय द प्राइवेट इन्वेस्टर्स, जितना वो इन्वेस्ट करेंगे, अगर वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो अपने स्टॉक में वो ऐड करते हैं. Investors on the purchase of goods which add to their stock of capital. Investment implies increase in stock of capital, goods और capital formation. अब यह डिटरमाइन किया जाता है, अब ये किस चीज़ पर मुनहसर है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किस पर मुनहसर है? ये मुनहसर है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉजेज लोअर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ज़्यादा है तो जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, वो कम होगा.
अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। ये है दूसरा। अब थर्ड पॉइंट इज जी। थर्ड पॉइंट इज जी। जी मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? इट इंक्लूड्स बोथ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें इंक्लूड किया जाता है गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी इसमें गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड किया जाता है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड किया जाता है। गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ कंजप्शन गुड्स। परचेज ऑफ कंजप्शन गुड्स meant for collective consumption. अब जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज लाइक एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ। अब जो ये है गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज द परचेज ऑफ, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ कंजप्शन गुड्स, ऑन द परचेज ऑफ कंजप्शन गुड्स। अब जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज लाइक एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस एक्स्ट्रा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है इसके इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर जिसको हम कहते हैं परचेज ऑफ कंजप्शन गुड्स, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। Private investment is generally induced investment as determined by consideration of profit. On the other hand, government investment is generally autonomous investment as determined by consideration of social welfare. अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए हमें याद रखना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अपने दो एस्पेक्ट्स हैं। एक है गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर है इट इज़ इन एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ infrastructure, on the infrastructure that is roads, buildings, dams, bridges and etc. फिर है हमारे पास नंबर 4th पॉइंट, दैट इज x माइनस एम, जिसको हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स ये क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स क्या है? एक्सपोर्ट्स जो है इट रेफर टू डिमांड फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो है एक्सपोर्ट्स रेफर टू डिमांड फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स बाय the rest of the world, rest of the world। अब imports जो है, imports जो है it refers to demand by our residents
Imports refer to demand by our residents of the goods produced abroad. अब जो पहले हमें देखना है कि x माइनस m क्या है. x माइनस m मीन्स नेट एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स जो है इट रेफर्स डिमांड फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जो एक्सपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट्स जो है इट इज़ द डिमांड फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स. जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं उनकी जो मांग होगी दुनिया में उसको हम कहते हैं वो है एक्सपोर्ट्स. और इम्पोर्ट्स जो है, इम्पोर्ट्स इट रेफर्स डिमांड फॉर ऑफ आवर रेजिडेंट्स. जो हमारे रेजिडेंट्स हैं वो जो अब्रॉड प्रोड्यूस किए जाते हैं उन चीज़ों की जब हम डिमांड करते हैं, उन चीज़ों को हम जब मंगाते हैं उसको हम कहते हैं इम्पोर्ट. एक्सपोर्ट होगा जब हम यहाँ से माल बाहर भेजेंगे, इम्पोर्ट होगा जब वहाँ से वापस ले आएंगे, उस चीज़ को कहते हैं हम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट एंड अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेनर्स. अब यहाँ पर एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेनर्स on our goods expenditure by the foreigners on our goods is added to total expenditure or AD in the economy. While expenditure on imports is subtracted जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेनर्स on our goods is added to total expenditure और AD. जो एक्सपेंडिचर करते हैं फॉरेनर्स ऑन आवर गुड्स, जो हमारी चीज़ों पर, हमारे प्रोडक्शन पर, हमारे प्रोड्यूस पर वो जो फॉरेनर्स एक्सपेंडिचर करते हैं वो हमारे एक्सपेंडिचर जो हमारे टोटल AD में है, जो टोटल एक्सपेंडिचर में उसको वो ऐड किया जाता है. अकॉर्डिंगली expenditure by the foreigners on our goods, जो expenditure of the foreigners on our goods is added to the total expenditure, उसको total expenditure में ऐड किया जाता है. और जो imports हैं, imports को subtract किया जाता है. यानी कि जो वहाँ से यहाँ से वो माल लेते हैं, यहाँ से वो प्रोड्यूस लेते हैं, जो उस पर हमें मिलता है, जो उस पर खर्च किया जाता है, वो हमारे AD में उसको ऐड किया जाता है. और जो यहाँ से बाहर जाता है, जो वहाँ से आता है, इसमें को हम कहते हैं कि एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेनर्स. जो फॉरेनर्स एक्सपेंडिचर करते हैं, एक्सपेंडिचर फॉरेनर्स किस पर करते हैं? फॉरेनर्स एक्सपेंडिचर करते हैं इंपोर्ट्स पर, और हम जो करते हैं हम एक्सपोर्ट्स पर करते हैं. एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेनर्स ऑन आवर गुड्स. याद रखो, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेनर्स ऑन आवर गुड्स, जो हमारे गुड्स हैं, जो उस पर वो एक्सपेंडिचर करते हैं, इज एडिड टू टोटल एक्सपेंडिचर, उसको टोटल एक्सपेंडिचर में ऐड किया जाता है. और जो एक्सपेंडिचर ऑन इम्पोर्ट्स, जो इम्पोर्ट्स पर एक्सपेंडिचर किया जाता है, उसको किया जाता है सब्ट्रैक्ट, दस इज x माइनस m. That means net exports which is added to AD. यानी exports minus imports जब हम करते हैं तो वहाँ पर हमें net exports हासिल हो जाता है, वहाँ से हमें net exports हासिल हो जाता है. These are the 4 components of aggregate demand. यानी कि यहाँ पर हमें ये जो 4th पॉइंट्स है, ये है x माइनस m, नेट एक्सपोर्ट्स,
एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, जो वहाँ से हमें मिलता है उसको हम कहते हैं, ये है नेट एक्सपोर्ट्स। ये 4 कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड के। इसमें 4 कंपोनेंट्स में आपको याद रखना है कि प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है और नेट एक्सपोर्ट्स है। ये 4 कंपोनेंट्स जब मैंने पहले भी बताया है, अगर इसको हम एग्रीगेट डिमांड को मेजर करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड को मेजर करने के लिए हमें ए डी इज़ इक्वल टू, ये मैंने पहले भी बताया आपको, फिर मैं बताऊंगा, ए डी इज़ इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये है एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर है? एग्रीगेट डिमांड है बराबर प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर and net exports. And net exports, it is the measurement of aggregate demand. That is all for today. Thank you.